हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे लास्ट क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈप्टर शुरू ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ or repeated sequence of events। केड़ियां events? G1 S G2 and M phase। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਚੱਲਿਆ, इन्हें G1 कंप्लीट किया, फिर इन्हें S कंप्लीट कर लिया, फिर G2 कंप्लीट कर लिया। ये M है जिहड़ा M फेज, ये I फेज। ठीक है, पूरा सैल साइकिल हो गया। आप तो सैल साइकिल ही डिस्कस कर रहे हैं ना। M दे अंदर ये डिवाइड हो गया। हुण आ एक सैल सीगा, ये M च आया, M च पहुंचिया, ये 1 तो 2 च डिवाइड हो गया। हुण ये दोनों सैल्स ने फिर सैल साइकिल फॉलो किया, आही सेम इवेंट्स फॉलो करेंगे। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਡ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਡ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ। ਤਾਂ ਐਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ G1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। S ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ DNA ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ DNA ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। G2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਲ ਇਟਸ ਆਰਗੇਨੇਲਸ ਆਰ ਡਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਲ M ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। M ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, M ਮੀਓਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਮ ਫੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਐਮ ਫੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲਸ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਜਰਮ ਸੈੱਲਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਨ ਅ ਸੈੱਲ ਡਿਵਾਈਡਸ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਡਿਵਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ, ਨੋਟ ਡਾਟਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਵਰਆਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ठीक है, या सेकंड आ जाओ माइटोसिस,
अगर इनू पूरा आप एम लिख लांगे आप फिर उन्होंने दो च डिवाइड करांगे, इस करके मैं इत्थे लिखता एम माइटोसिस एम मीओसिस। ठीक है, ए माइटोसिस केड़ी है बेटे, जेडे सिंपल बैक्टीरियल सैल्स ने, ठीक है, स्मॉल सैल्स सिंपल बैक्टीरियल सैल्स ने ना जेडे, उन्हां दी बॉडी दे अंदर मतलब जिन्हां च आपां ये कह दईए कि क्रोमोसोम्स दी पूरी कंडेंसेशन, या जिवें एक बैक्टीरियल सैल है बहुत सिंपल वे दे नाल डिवाइड होना, जिवें आपां लोअर क्लासिस च अमीबा पढ़ के आंदे सी ना, पैरामीशियम है, अमीबा है, जिहदे अंदर कोई स्पैशल स्पिंडल ना बने, मतलब इट इज़ वेरी सिंपल मैथड ऑफ डिवीजन इन विच नो स्पिंडल फॉर्मेशन इज देयर। हुण स्पिंडल की है, स्पिंडल ना बेटे एक एवें दी स्ट्रक्चर हुंदी है, मिड चों मोटी, साइड्स तो टेपर्ड, साइड्स तो पतली, ठीक है, कुछ एवें दा आई दी तरह ये स्पिंडल है। तो ये स्ट्रक्चर माइटोसिस ते मीओसिस च बनती है। ठीक है, जो आप माइटोसिस मीओसिस करांगे आपां स्पिंडल क्लीयर हो जाऊगा होर भी ज़्यादा। तो इस सिंपल मैथड है जिहदे अंदर सिंपली एक सैल का न्यूक्लीयस डिवाइड कर जाऊगा, कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ए माइटोसिस, मेरे को की है आ एक बैक्टीरियल सैल है, आ इहदा न्यूक्लीयस है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है। आ इहदी की आपां ने पढ़ी सी मीजोजोम, मीजोजोम है जिहड़ी वो इहनूं टच होई जदों इस सैल ने डिवाइड होना है, जदों ये टच होए तो एक सिग्नल आया भी सैल ने डिवाइड होना है। हुण की होया, मीजोजोम ने जदों इहनूं टच किया, इहदा न्यूक्लीयस है ना जिहड़ा वो इलोंगेट होना शुरू हो गया, तो दूसरी साइड तो भी मीजोजोम यानी कि मैंब्रेन है जिहड़ी ओहदी इनवेजिनेशन होनी स्टार्ट होगी। देयर वुड बी द इनवेजिनेशन ऑफ द मैंब्रेन। ठीक है, इनवेजिनेशन हुई, न्यूक्लीयस है जिहड़ा वो पहला दो च डिवाइड हो गया, ठीक है, इस तरीके दे नाल, एंड मैंब्रेन है जिहड़ी वो इनवेजिनेट कर दी गई, तो फाइनली जिहड़ा वो सैल सीगा वो दो पार्ट्स दे अंदर डिवाइड हो गया। अपने को एक सैल तो सिंपली की आ गए, दो सैल्स आ गए, मैं इत्थे कोई स्पिंडल नहीं फॉर्म किया। सच ए मैथड ऑफ डिवीजन विच अकर्स इन द लोअर सैल्स बैक्टीरियल सैल्स, उन्होंने आपां कहने आ ए माइटोसिस। हो तो ये भी सैल डिवीजन ही रही है ना, बट बहुत ही सिंपल मैथड के नाल सैल दी डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल मैथड है जिहदे अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं बनती, ना ही उहदा जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है वो कंडेंस हुंदा है। ठीक है, सिंपली न्यूक्लीयस इलोंगेट करदा है ते इहदी सैल मैंब्रेन दी इनवेजिनेशन हुंदी है एंड सैल दो पार्ट्स दे अंदर डिवाइड हो जाता है। सिंपल मैथड। ठीक है, हुण आ जाओ जी नैक्सट माइटोसिस एंड मीओसिस। ये तो होया लोअर सैल्स के अंदर बैक्टीरियल सैल के अंदर बिना स्पिंडल फॉर्म किए जिहड़ा मैथड ऑफ डिवीजन हो जाए उन्होंने आपने कहता जी ए माइटोसिस। सैल दो डॉटर सैल्स के अंदर वंडिया गया। माइटोसिस की है बेटे, व्हाट इज माइटोसिस? जदों बॉडी के अंदर सैल्स ने ग्रोथ करनी है, रिपेयर करनी है, अपना नंबर इंक्रीज करना है, इन सच केसेस बॉडी के अंदर सोमैटिक सैल्स के अंदर एक डिवीजन प्रोसैस हुंदी है, उन्होंने आप कहने माइटोसिस। तो इत्थे कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ गए कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस की है। सिग्निफिकेंस आ रहा, माइटोसिस किहड़े सैल्स के अंदर होंगे, मतलब अकरेंस ऑफ माइटोसिस कित्थे है, तो सोमैटिक सैल्स ऑफ द बॉडी है। ठीक है, पर जिहड़े मीओसिस है ना, ਇਹਦਾ फंक्शन की है बॉडी के अंदर गैमीट्स नू फॉर्म करना। बेसिक फंक्शन इज गैमीट्स नू फॉर्म करना। तो ये किहड़े सैल्स के अंदर होंदी है बॉडी के? जर्म सैल्स यानी कि रीप्रोडक्टिव सैल्स के अंदर। पर इन्हां सैल्स के कोल एक सैकेंड एबिलिटी भी होंदी है कि अपना नंबर मेनटेन करन लई ये माइटोसिस भी करते हैं। मतलब वो चाहते कि साडा नंबर 100 है तो 100 ही रहे बॉडी के अंदर, तो वो अपना नंबर मेनटेन करन लई ये की करते हैं, ये माइटोसिस भी करते हैं। बट बेसिकली आपां की है कन्फ्यूज ना होइए, इस करके आपां की कह दिंदे आ कि माइटोसिस है जिहड़ी वो सोमैटिक सैल्स च हुंदी है, मीओसिस है जिहड़ी वो जर्म सैल्स च हुंदी है। एक बच्चे का मेरे को डाउट आया सीगा, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे ने मैंने पूछा सीगा कि जिहड़ी माइटोसिस है वो मेल्स दे अंदर हुंदी है ते जिहड़ी मीओसिस है वो फीमेल्स के अंदर हुंदी है, कुछ एवें उन्हें बच्चे ने मैंने पूछे। बेटा एवें का कुछ भी नहीं हुंदा, माइटोसिस भी दोनों बॉडीज़ च हुंदी है, क्योंकि फीमेल ने भी अपनी बॉडी की ग्रोथ रिपेयर करनी है ना, तो ये भी दोनों च हुंदी है। मीओसिस भी दोनों च ही हुंदी है। फीमेल च एग की फॉर्मेशन हुंदी है मीओसिस नाल,
ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੀਓਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, मैंने कहा माइटोसिस की अकरेंस है जिहड़ी वो कित्थे हुंदी है, सोमैटिक सैल्स ऑफ द बॉडी दे अंदर हुंदी है। ठीक है, इहदा टाइम पीरियड की है, किन्ने टाइम च हो जाती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के अंदर आप 30 मिनट्स टू 3 आवर्स है जिहड़ा वो कह दिंदे हैं। ठीक है, ओके। हुण आ जाओ बेटे, जिहड़ी एक सैल डिवीजन है, आप वापस चलते हैं टूवर्ड द सैल डिवीजन। चाहे आपने क्या सैल डिवीजन नूं आपने 3 टाइप्स च डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ द टाइप ऑफ द सैल। सैल दे बिहाफ ते सैल डिवीजन नूं आपां 3 टाइप्स च डिवाइड करता, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मीओसिस। ठीक है, हुण मैंने की कहा कि सैल डिवीजन जदों हो रही है, चाहे वो ए माइटोसिस है, चाहे वो माइटोसिस है, चाहे वो मीओसिस है, तो उहदे अंदर प्रोसीजर की है। तो सैल डिवीजन जिहड़ी है वो 2 चीज़ां करती है अपने डिवाइड होने तो पहले। ठीक है, मतलब एक सैल नूं डिवाइड होने लई 2, एक जिहड़ा उहदा प्रोसैस है ना, वो 2 पार्ट्स के अंदर वंडिया होया। ठीक है, उहदा प्रोसैस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। किहड़े किहड़े 2 पार्ट्स ने, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। चाहे ए माइटोसिस है, वो भी पहले कैरियोकाइनेसिस का मतलब होंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करूँगा, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि आ सैल सीगा, इहदा न्यूक्लियस इलोंगेट किया। ठीक है, फिर इहदा सैल मैंब्रेन जिहड़ा है वो इनवैजिनेट होया ते सैल 2 भागों के अंदर वंडिया गया। चाहे माइटोसिस है, चाहे मीओसिस है, चाहे ए माइटोसिस है, हर एक दे अंदर पहले की हुंदा है कैरियोकाइनेसिस हुंदा है, दैन दैट इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हुण अपने कोल माइटोसिस च भी दोनों पार्ट होणगे, पहला कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, हुण मैनूं ये पता चल गया कि जिहड़ा मेरा माइटोसिस है वो की है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ये अंदर भी इवेंट्स ही होंदियां ने जो कि आप उल्टियां पुल्टियां नहीं कर सकते। जिवें आप सैल साइकिल नूं कहा सीगा कि पहला G1 आऊगा, फिर S आऊगा, फिर G2 आऊगा। सिमिलरली अपने कोल माइटोसिस च भी एक सीक्वेंस है जो एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, हुण इहदी डिस्कवरी बेटे 2 साइंटिस्ट सीगे, एडवर्ड स्ट्रैसबर्गर एंड वेल्डर फ्लेमिंग। ठीक है, एडवर्ड स्ट्रैसबर्गर, नाम याद करने की इन्नी खास जरूरत नहीं हैगी, मैं दस दिनी हाँ, वेल्डर फ्लेमिंग। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट सीगे जिन्हां ने माइटोसिस की डिस्कवरी की सी। ठीक है, हुण आपां नूं ये पता चल गया दा ड्यूरेशन की है, इहदी अकरेंस पता चल गई बेटे, ते आपां हुण माइटोसिस नूं डिफाइन करते हैं। माइटोसिस की है बेटे, बॉडी के अंदर सोमैटिक सैल्स के अंदर होने वाली एक डिवीजन प्रोसेस है। ठीक है, माइटोसिस की है बेटे, एक डिवीजन प्रोसेस है जिहदे अंदर एक पेरेंटल सेल, इट इज द डिवीजन process which occurs in somatic cells of the body, in which a parent cell divides into 2 equal daughter cells। हुण मैं इत्थे एक वर्ड बोलिया, equal daughter cells। 2 equal daughter cells का मतलब की है कि एक पेरेंट सैल है जिहदे कोल क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है। ठीक है, आप ह्यूमन की गल की। हुण जदों ये डिवाइड होया तो ये जिहड़े 2 डॉटर सैल्स बननगे उन्हां दे अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही रहूगा।
ठीक है, दैट इज वाई माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨੇਸਿਸ। पहले आप केड़ी डिस्कस करांगे, कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, हुण आपां नूं इहदी डेफिनेशन पता चल गई कि ये बॉडी दे सोमैटिक सैल्स दे अंदर उन्हां नूं दो भागां दे अंदर वंड दिंदे, एक सैल नूं दो दे अंदर ही डिवाइड करदी है, दोनों दे अंदर इक्वल नंबर ऑफ DNA, इक्वल नंबर ऑफ ऑल द सबसटेंसेस जांदा है, इस करके इनू इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जांदा है। ठीक है, नैक्सट अपने कोल की आ गया बेटे, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस नूं आपां ने कहा कि ये दो पार्ट्स के अंदर आपां इहनूं डिवाइड कर रहे हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड अदर इज साइटोकाइनेसिस। मैं स्टार्ट किया माइटोसिस, इहदा फर्स्ट पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, मतलब हुण इहदा फर्स्ट की डिवाइड करूगा, न्यूक्लियस डिवाइड करूगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस है ना जिहड़ी, ये फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, वो 4 पार्ट्स केड़े केड़े ने, 4 पार्ट्स एज इट इज याद करने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, हुण इन्हां चों सब तो लंबा ड्यूरेशन किहदा रहिंदा है, प्रोफेज दा। ये कितना टाइम लैंदा है, ये राउंड अबाउट 50 मिनट्स लै जांदा है एक सैल दे जदों वो डिवाइड करता है। मैटाफेज रहिंदा है 2 तो लैके 10 मिनट तक, ये रहिंदा है एनाफेज 2 तो लैके सिर्फ 3 मिनट तक, एंड टीलोफेज है जिहड़ा, ये भी आई लगा लो कि सैकेंड शॉर्ट फेज है, 30 to 40 मिनट्स ये आराम नाल लै जांदा है। ठीक है, तो ये दोनों डिवीजन प्रोसैस के अंदर लंबे फेजेस ने, 50 मिनट्स भी हो सकते हैं ये अंदर। ठीक है, तो ये दोनों, ये सब तो लंबा होंगे, ये सैकेंड लॉन्गेस्ट फेज होंगे। ठीक है, तो दैट इज कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। हुण देखो, एक सैल है जिहड़ा वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो आई फेज च आ गया, आई फेज के अंदर उन्हें सब तो पहले G1 किया, उन्हें अपने किनू डबल कर लिया, अपने प्रोटीन्स नू डबल कर लिया। हुण उन्हें एस दे अंदर एंटर किया, एस दे अंदर आया, उन्हें अपना DNA डबल कर लिया, G2 दे अंदर गया, उन्हें अपने ऑर्गेनल्स डबल कर लिए। हुण वो कित्थे पहुँच गया, M पार्ट दे अंदर पहुँच गया। M पार्ट कहता है कि मैं भी 2 च डिवाइड होना, पहला तैनू अपना न्यूक्लियस डिवाइड कराऊंगा, फिर मैं तैनू तेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड कराऊंगा। ठीक है, हुण वो कहता ओके मैनू न्यूक्लियस डिवाइड करा दे। हुण वो न्यूक्लियस डिवाइड करन लई चलिया, ते न्यूक्लियर डिवीजन लई उन्होंने फिर 4 ਜਿਹੜੇ फर्दर फेजेस ने उन्हां च एक सैल एंटर करता है। ठीक है, हुण उन्हां 4 फेजेस के अंदर जिहड़ा फर्स्ट फेज है बेटे, दैट इज प्रोफेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज है। हुण आपां कैरियोकाइनेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्स्ट पार्ट है जिहड़ा वो है प्रोफेज। जिहड़ा प्रोफेज है ना, ये फर्दर 3 च डिवाइडेड है, थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड लगूगा बेटे, बट वंस यू लर्न इट, वंस यू जिहड़ा है तो इनू चंगी तरह मेरे को समझ लिया, मैं बहुत स्लो चल रही हाँ बेटे, दैट इज़ वाई आई एम इन पेशेंस। ठीक है, क्वाइट पेशेंस, तो आप बहुत स्लो चलांगे, चाहे आप रिपीट कर करके चलीए, बट आई जस्ट वॉन्ट कि तुहाडा इत्थे कोई कॉन्सैप्ट नहीं हिलना चाहिए। जे इत्थे कॉन्सैप्ट हिलदा है तो तुहाडी +2 के अंदर जिहड़ा रीप्रोडक्शन वाला चैप्टर आऊगा, उत्थे प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी आर मूविंग वेरी स्लो। तो अपने को प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। केड़े केड़े हो गए, अर्ली, मिड एंड लेट। हुण मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूँगी बेटे, आ मेरा सेल साइकिल है। ठीक है, आ रहा सेल साइकिल, आ M फेज है, दिस इज M फेज, दिस इज I फेज। ठीक है, नीचे लिख रही हैं I फेज। आ एक सैल है, ये इत्थों G1 च एंटर होया, S च एंटर होया, फिर ये G2 च एंटर हो गया। ठीक है, इन्हें अपना सारा कंप्लीट कर लिया, हुणे M च एंटर हो गया। ठीक है,
एम दे अंदर एंटर होने तो पहले सैल किहदे च सीगा आई फेज दे अंदर, यानी कि इस सैल दी आई फेज पूरा करके इत्थे पहुंचण तो बाद जो स्ट्रक्चर है वो आ रही, ठीक है। मैं एक सैल दी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ड्यूरिंग इट्स आई फेज। आ सैल है बाहर, दिस इज सैल मैम्ब्रेन, तुसी लेबल सारे करने बेटे, सैल मैम्ब्रेन। आ सैल दा साइटोप्लाज्म है, आ सैल दा की है न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दे उपर जिहड़ी मैम्ब्रेन है उन्होंने मैं क्या, दिस इज न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। आ सैल दे अंदर सैल दा क्रोमेटिन है जो कि डबल हो चुके हैं, ठीक है, दिस इज क्रोमैटिन, इधर ही लेबल करते हैं, दिस इज क्रोमैटिन जो कि डबल हो चुका है, ठीक है। आ सैल दा न्यूक्लियोलस है, दिस इज न्यूक्लियोलस ऑफ द सैल। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਅਰ ਚ, ਸੈਂਟਰੀਓਲ, ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲ, ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਸੈਂਟਰੀਓਲ, ठीक है। दो हो गए, एक होना चाहिए ना, आ एक क्लाउड है जिहदे अंदर दो सेंट्रीओल्स ने, क्योंकि सैल ने सब कुछ डबल कर लिया तो उहदे अंदर किन्ने सेंट्रीओल्स आ गए, पेयर। डिप्लोसोम्स किन्ने आ गए, पेयर ऑफ डिप्लोसोम आ गया, ठीक है। एक डिप्लोसोम आ रहा, एक डिप्लोसोम आ रहा, दो हो गए ना। हुण देखो एक चीज़ याद रखना, जदों भी एक सैल डिवाइड करता है, सैल की लाइफ का सब तो इंपॉर्टेंट प्रोसैस हुंदा है डिवीजन। उस टाइम ते सैल नूं इन्नी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होंदी है कि मैंने अपनी बॉडी के हर पार्ट नूं इक्वल तरीके दे अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। हुण ਜਿਹੜੇ भी ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਰਗੇਨਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਉਹ ਸਭ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, ਵੈਸੀਕਲਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸੈੱਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਲਸ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, यानी कि ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਲਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਆਈ ਫੇਜ਼। ਇਹ ਆਈ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ आई फेज तो किहदे अंदर एंटर हो जाता है, ये आई फेज तो प्रो फेज दे अंदर एंटर हो गया, इट एंटर्स इन द प्रो फेज, ठीक है जी। हुण प्रो फेज नूं आपां तीन च डिवाइड कर लिया सीगा, अर्ली प्रो फेज, मिड प्रो फेज एंड लगा लो लेट प्रो फेज, ठीक है। मैं जगह देख के बनाऊंगी, ठीक है। तो हुण अर्ली प्रो फेज दे अंदर की होगा बेटे, अर्ली प्रो फेज दे अंदर जिहड़ा सैल है ना, हुण ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ मैं एक च लेबल करता, सारे लेबल सेम रहनगे, तुसी हर डायग्राम च लेबल करना। आ सेंट्रीओल्स ने ना जेड़े डिप्लोसोम, आ एक सेंट्रीओल, आ दूसरा सेंट्रीओल, ये एक दूसरे तो फस्ट फेज के अंदर की हुंदा है, ये एक दूसरे तो दूर जाने शुरू हो जाते, दे स्टार्ट अपार्टिंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जदों ये अपार्ट हुंदे ने तां इन्हां चों एक स्पैशल रेज निकलनियां शुरू हो जांदियां ने, उन्हां नूं कहंदे एस्टर रेज, ठीक है। एस्टर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रल रेज का मतलब है बेटे कि जिमें एक तारे के अंदरों की रोशनी निकलती है कुछ उवें दा, ठीक है। एस्टर बनना शुरू हो जाता है। ये आपस च भी माइक्रोटिब्यूल्स दे नाल कनैक्टेड हुंदे ने, ये दूर जाने शुरू हो जाते हैं। तो जिहड़ा क्रोमैटिन
जो कि पूरा उलझिया होया सी वूल की तरह, ये सुलझना शुरू हो जाता है, स्पाइरीम सिचुएशन के अंदर आ जाता है। स्पाइरीम मतलब क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सुलझाना शुरू करता, पर हैगे हजे भी वो थ्रैड की तरह ही ने। आ न्यूक्लियोलस है, आ मेरा न्यूक्लीयर मैंब्रेन है, आ मेरे क्रोमोसोम्स ने जेड़े एक की होने शुरू हो गए, ये अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर देंगे ने। दे स्टार्टड देयर कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने आप को सुलझाना शुरू करता। कि क्योंकि देखो हुण इत्थे मैं एक बेनीफिट दसूँगी। पहला तो अपने कोल इहदे अंदर दो चेंजेस आए। एक तो सेंट्रीओल्स जो कि डिप्लोसोम के अंदर ने, दे स्टार्ट्स अपार्टिंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो एक दूजे तो दूर जाना शुरू कर देंगे हैं, तो उन्होंने चों एस्टर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जेडे मेरे क्रोमोसोम्स ने, जेडे मेरे क्रोमेटिन सीगा, हुण वो क्रोमोसोम्स च कन्वर्ट होना शुरू हो गया। क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो गए, जो कि क्रोमोसोम लाइक अपीयरेंस लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। आ दो मेजर चेंजेस होंगे ने प्रोफेज के अंदर। किहड़े प्रोफेज के अंदर? अर्ली प्रोफेज के अंदर, ठीक है जी। हुण फिर सुनो स्टोरी की कहती सीगी कि एक सैल ने सैल साइकिल पूरा किया, हुण वो एम के अंदर एंटर हो गया। एम की है? एम माइटोसिस है। माइटोसिस कहती मैं फरदर दो तरह की हाँ, एक मैं कैरियोकाइनेसिस हाँ, एक मैं साइटोकाइनेसिस हाँ। जो मेरी कैरियोकाइनेसिस है वो कहती है कि मैं फरदर फिर चार तरह की हाँ, प्रोफेज, मैटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज कहता मैं भी तीन तरह का हाँ, अर्ली, मिड एंड लेट। अर्ली के अंदर की होंगे, जेडे सेंट्रीओल्स डबल होए सीगे वो एक दूजे तो दूर जाते जाते उन्होंने चों एस्टर्स निकलने शुरू हो गए, ठीक है। सैकेंड, उन्होंने विचकार की होए, माइक्रोटिब्यूल्स बनने शुरू हो गए। उन्होंने विचकार माइक्रोटिब्यूल्स आने शुरू हो गए। क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सुलझाना शुरू करता। जदों सुलझाते ने उस स्टेज को आप स्पाइरीम स्टेज कह देंगे हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने मैं की कहा, उस स्टेज को आपने कहा स्पाइरीम स्टेज कहता बेटे, ठीक है। तो जेडे मेरे इस फर्स्ट स्टेज के अंदर की होया, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होनी शुरू होगी, सेंट्रीओल्स दूर जाने शुरू हो गए, ठीक है। सैकेंड स्टेज के अंदर इनू मैं की क्या? अर्ली प्रोफेज, ठीक है, दिस इज अर्ली प्रोफेज। हुण मेरे को की होगा बेटे, मैं न्यूक्लीयस नूं इरेज कर रही हाँ। हुण मेरे को आया प्रोफेज का सैकेंड पार्ट, जिन्हों मैं क्या? मिड प्रोफेज। दिस इज मिड प्रोफेज, ठीक है, मिड प्रोफेज। मिड के अंदर की होया, न्यूक्लीयस है ना जेड़ा, उन्हें भी अपना एनवेल्प तोड़ता, तो वह कहता मेरे च भी जेडे प्रोटीन्स ने ना एनवेल्प के अंदर, वो भी सैल यूज करें, ठीक है, ड्यूरिंग डिवीजन। हुण जेडे सेंट्रीओल्स ने ना वो होर ज़्यादा दूर जाने शुरू हो गए, वो बहुत दूर चले गए, उन्होंने चों एस्टर्स निकलने शुरू हो गए, ठीक है। एस्टर्स तो पहले ही निकल रहे सी ना, एस्टर्स निकल रहे हैं तो होर दूर जा रहे हैं। तो नाल नाल जिवें न्यूक्लीयस दा मैंब्रेन डिसअपीयर होया, उवें न्यूक्लियोलस भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, न्यूक्लियर एनवेल्प स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड क्रोमोसोम्स ने जड़ियाँ उन्हां दी होर ज़्यादा कंडेंसेशन होगी, तो फाइनली की हो गया अपने कोल कंडेंस होके फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गया, ठीक है। आ एक क्रोमोसोम सीगी मेरे कोल, आ इन्हें अपने आप में डुप्लीकेट किया होया सीगा, तो इस करके आप इनू किवें दिखा रहे हैं? एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनू दिखा रहे हैं, ठीक है। हुण तीसरी स्टेज की होया, सेंट्रीओल्स दूर जा रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीओल्स दूर जा रहे हैं, एस्टर्स निकल रही ने, न्यूक्लीयर मैंब्रेन अपने आप को की कर रही है? डिसअपीयर कर रही है। न्यूक्लियोलस है जोड़ा वो भी डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। अगली स्टेज के अंदर लेट के अंदर की होया, इत्थों दी इत्थे आ जाओ, लेट वाले स्टेज के अंदर की होया, न्यूक्लियस पूरी तरह ब्रेक हो गया। न्यूक्लियस पूरी तरह ब्रेक हो गया, उन्हें अपने आप को रपचर कर लिया, तो उन्हें की बनाता? स्पिंडल फॉर्म करता। न्यूक्लियस पूरी तरह रपचर हो गया। सेंट्रीओल्स ने जेड़े वो पोल्स ते आ गए। आ सेंट्रीओल का पेयर एक है, आ सेंट्रीओल का पेयर दूसरा है। आ ये चों एस्टर्स निकल रहे हैं, आ एस्टर निकल रहे हैं। न्यूक्लीयस का एपरेटस बन गया सारा। उस एपरेटस को आपने की किया? स्पिंडल। ये स्पिंडल किस चीज़ का बनया? माइक्रोटिब्यूल्स का बनया हुआ है। सारे प्रोटीन्स माइक्रोटिब्यूल बनाने च एसोसीएट हो गए, स्पिंडल बन गया। सेंट्रीओल्स ने जेड़े वो पूरे दोनों अलग अलग पोल्स ते आ गए,
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਪਿੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਆ ਐਸਟਰ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟਡ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਪਿੰਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਰਪਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਪਿੰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪਿੰਡਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਿੰਡਲ, ਹੁਣ ਸਪਿੰਡਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪਿੰਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਥਿਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਵਨ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਹੈ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ, ਆ ਮੈਂ ਡਿਸਕ ਬਣਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਰਕੇ। ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟੋਕੋਰ। ਸੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਈਨੈਟੋਕੋਰ। ਕਾਈਨੈਟੋਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਸਪਿੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਇਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲੇਟ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਈਨੈਟੋਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਪਿੰਡਲ ਦੀਆਂ ਟਿਬਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਈਨੈਟੋਕੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਪਿੰਡਲ ਕੀ ਹੈ, सेकेंड पॉइंट में क्लियर करता काइनेटोकोर की है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम्स दी कंडेंसेशन दी सिग्निफिकेंस की है। क्रोमोसोम्स कंडेंस क्यों होंदियां ने? देखो बेटे, किसी दे एक चीज़ सुनियो, मैं हुणे कहा कि जिहड़ियां क्रोमोसोम्स ने ना वो बहुत पहला की सी क्रोमेटिन सी, लंबे लंबे थ्रैड्स सीगे, वो थ्रैड्स भी आपस च उलझे हुए ने। मान लो बहुत ही उलझे हुए थ्रैड्स ने, आपां ने उन्हां नूं सुलझाना है, तो जे आपां उन्हां नूं जिन्नी मर्जी कोशिश करिए वो ईजीली जिन्ना टाइम आपां उन्हां नूं दे रहे हैं ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਗਲਸ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਟੈਂਗਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਗਲਸ ਤਾਂ ਨੇ,
पर वो ईजीली निकल जाएगियाँ, उन्ने नहीं ब्रेकअप होणगे जिन्ने लंबे वाले दे होणगे, मतलब जिन्ना लंबियां दे अंदर उलझा ज़्यादा पऊगा। दैट इज़ वाई क्रोमोसोम्स अपने आप नूं ईजी करन लई अपने आप नूं शॉर्टन कर लैंदियां ने। दैट इज़ नोन एज द शॉर्टनिंग और कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स ने अपने आप नूं कंडेंस कर लिया, क्रोमोसोम्स ने अपने आप नूं शॉर्टन कर लिया। ठीक है, तो हुण ये अपने कोल एक पूरा की हो गया, प्रोफेज कंप्लीट हो गया। दिस इज अर्ली प्रोफेज, दिस इज मिड प्रोफेज, दिस इज लेट प्रोफेज। ठीक है बेटा जी, तो अर्ली मिड एंड लेट प्रोफेज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हुण बेटे देखो हुण की हुंदा है, हुण इत्थे एक होर चीज़ सुनो, एक फोर्थ क्वेश्चन होर मेरे दिमाग 'च है। फोर्थ क्वेश्चन सुनो। फोर्थ फर्स्ट दसिया वट इज स्पिंडल, सैकेंड दसिया वट इज काइनेटोकोर, वट इज इट्स फंक्शन। पेपर च एज इट इज़ एक नंबर च पूछा जाता है, जिवें काइनेटोकोर का मल्टीपल के अंदर जिहड़े तुहाडे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन आने ने, उहदे अंदर तुहानूं काइनेटोकोर लिखता, काइनेटोकोर के नीचे फंक्शनस देते, आपां नूं पुछ लिया, आपां नूं ये नहीं पता काइनेटोकोर की है, फिर आपां उहदा आंसर किवें करांगे। हुण आपां नूं क्लीयर हो गया कि काइनेटोकोर की है। हुण मैं दस रही हाँ बेटे अगला क्वेश्चन, स्पिंडल है ना, जिहड़ा स्पिंडल, आपां नूं स्पिंडल क्लीयर हो गया कि एक एवें दी स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोटिब्यूल्स तो बनी है, न्यूक्लीयर मैंब्रेन दे डिसअपीयर होने तो बाद बनी है, मिड चो मोटी है, साइड्स तो टेपर्ड है, जिहदे उपर क्रोमोसोम्स अपने आप नूं अरेंज कर लैंदियां ने। दैट इज़ नोन एज स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल है ना जिहड़ा, ये दो तरह का हुंदा है, ये दसना चाहनी हाँ मैं। स्पिंडल इज ऑफ टू टाइप्स, एनेस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल। पहला एम्फी सुनते हैं क्योंकि आपां पता चल चुके हैं। एम्फी का मतलब की है, एम्फी मतलब बोथ, दो साइड्स ते एस्टर्स निकलन। ठीक है, दो साइड्स ते एस्टर्स निकलन, इत्थे एस्टर निकल रहे हैं। ठीक है, आ एस्टर निकल रहे हैं दो साइड्स ते, आ एस्टर्स निकल रहे हैं दो साइड्स ते। तो एनीमल सैल दे कोल एस्टर्स किहदे चों निकले, सेंट्रीओल्स चों निकले। सेंट्रीओल्स किहदे कोल ने, एनीमल सैल दे कोल है। तो एनीमल सैल दे कोल सेंट्रीओल्स ने, तो सेंट्रीओल्स जदों एक दूसरे तो दूर जाते हैं तो उन्हां चों एस्ट्रल रेज निकलदियां ने। तो जिहड़े स्पिंडल दियां एस्टर रेज बनदियां ने दो, उन्होंने कहते हैं एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल। ठीक है, एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल। ठीक है, एनेस्ट्रल, एन मतलब विदाउट, एस्ट्रल मतलब एस्टर्स। जिहड़ा प्लांट सैल है उहदे कोल सेंट्रीओल्स ही नहीं हैगे, तो जदों स्पिंडल बनूगा क्योंकि उहदे कोल सेंट्रीओल्स ही नहीं हैगे, तो एस्टर्स किहदे च निकल रहे सीगे, सेंट्रीओल्स च निकल रहे सीगे। तो जदों वो दूर जाएंगे, तो जदों उहदा स्पिंडल बनूगा तो सेंट्रीओल्स दूर ही नहीं जाएंगे क्योंकि है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोल सेंट्रीओल्स नहीं है तो कोई एस्टर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो प्लांट्स के अंदर जिहड़ा स्पिंडल फॉर्म होंदा है दैट इज़ एनेस्ट्रल टाइप ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, तो अपने को दैट इज एनेस्ट्रल टाइप ऑफ द स्पिंडल। क्लीयर है बेटे, हुण आपां नूं इन्ने तक क्लीयर हो गया कि एक तो फर्स्ट की आ गया अपने को सैल डिवीजन है जिहड़ा वो हुंदा की है। सैल डिवीजन का मतलब है जदों भी कोई सैल डिवाइड करता है तो उन्होंने उहदे डिवीजन के मैथड नूं आपां की कहने आ, सैल डिवीजन। ठीक है, सैल डिवीजन तीन तरह की है, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मीओसिस। सैल डिवीजन का जो प्रोसैस हुंदा है तो वह दो चीज़ां करता है, तीनों तरह। ठीक है, तीनों ऑल द थ्री टाइप्स दे फॉलो द सेम प्रोसैस, पहला कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। बट जिहड़ा ए माइटोसिस है उहदे अंदर सिंपल टाइप ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड सिंपल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस हुंदा, दे आर नॉट फर्दर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, लेकिन जिहड़ा माइटोसिस है एंड मीओसिस है उन्हां दा कैरियोकाइनेसिस है जिहड़ा दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लीकेटेड। ठीक है, क्वाइट कॉम्प्लीकेटेड क्यों, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस ने अपने आप नूं चार फेजेस के अंदर, चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, प्रो, मैटा, एना एंड टीलो। हुण आपां की कर रहे हैं, प्रो फेज। प्रो फेज के अंदर सैल की करता है, उन्हें पूरी तैयारी कर रखी है कि हुण मैं डिवाइड होना है। तैयारी कदों की, आई फेज के अंदर। हुण वो एंटर किहदे च कर गया, प्रो फेज के अंदर। प्रो फेज कहता मैं भी तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हाँ, अर्ली, मिड एंड लेट। ठीक है, अर्ली वाले दे अंदर की होगा, अर्ली दे अंदर सेंट्रीओल्स दूर जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रीओल्स दूर जाएंगे, उन्हां दे अंदर माइक्रोटिब्यूल्स ने जिहड़े उन्हां नूं पकड़ के भी रखते हैं, तो उन्हां चों एस्टर्स निकलते हैं।
क्रोमोसोम्स अपने आप ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿੰਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਲੋਫੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਟਾਫੇਜ਼। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਿੰਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸਟਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਿੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, 2 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ। ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। I am drawing it, then it will be more clear. ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡ। ਉਹ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਭ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੀਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚੌਥੀ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੰਜਵੀਂ। 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ 46 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਨ ਔਨ ਦਾ ਸਪਿੰਡਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰੋਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਿਲ ਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੀਆਂ? 2 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਟਾਫੇਜ਼। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੇਟ ਮੈਟਾਫੇਜ਼। ਅਰਲੀ ਤੇ ਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਰਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ क्रोमोसोम्स ਨੂੰ फोर्सेस ਦੇ ਨਾਲ, क्रोमोसोम्स ਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स लगती है। ठीक है, the process of drawing the chromosomes on the equator of the spindle is called as congression। congression ਉਹ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ क्रोमोसोम्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that process is called as the congression। ठीक है, congression ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ਿਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ आके अरेंज हो गए, दैट इज कॉल्ड एज मैटाफेज। ठीक है, सेकंड फेज दे अंदर वो सारे एक दूसरे दे ऊपर आ गए। ठीक है, एक दूसरे दे ऊपर नहीं कह सकते, एक दूसरे दे नाल एक कॉमन लाइन दे ऊपर अरेंज हो गए। एक सेंट्रल लाइन है, वो ऊपर सारे क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमीयर ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ 4 ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 46 ਬਣਾਉਣਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਫੇਜ਼। ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ने जड़ियाँ वो सेंटर चो सेंट्रोमीयर के उपर फोर्स लगूगी तो क्रोमोसोम्स ने जड़ियाँ वो सैपरेट हो जाएगियाँ फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेट बन चुकी सी ना, तो इक्वेटोरियल प्लेट के उपर सेंटर च फोर्स लगी। देखो की होया एनाफेज च की हुंदा, एनाफेज के अंदर जड़ियाँ क्रोमोसोम एक सेंटर पॉइंट ते अरेंज्ड है, एक फोर्स लगी, फोर्स के नाल की होया इहदा एक पार्ट इधर नूं जाना शुरू हो गया, एक पार्ट इधर नूं जाना शुरू हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम सेंटर चों डिवाइड हो जाऊगी। एना मतलब टुटना, क्रोमोसोम सेंटर चो, क्योंकि वो डुप्लीकेटेड डीएनए सीगा ना, एक डीएनए का ओरिजिनल पार्ट इधर चला गया, एक डीएनए का डुप्लीकेटेड पार्ट इधर पोल वाल जाना शुरू हो जाऊगा, सेंट्रोमीयर दे वाल जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज द एनाफेज। एनाफेज है जिहड़ा ये बहुत ही शॉर्ट ते बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि एनाफेज। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज विच लास्ट्स अबाउट 2 to 3 minutes। इट्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल पार्ट। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, क्रोमेटिड्स ने ना ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੇਟਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ दूर जाना शुरू कर देंगे ने, जिदे करके जिमें देखो कोई भी चीज़ है वो एक दूसरे तो अपार्ट जा रही है, ਜਦੋਂ ਅਪਾਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੱਜਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ, ਐਸਟਰਲ ਰੇਜ਼, ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, हुण जदों ब्रेक हो गए तो देखो आ वी शेप च लग रहा है, किसी दी शेप इस तरीके दे नाल कुछ एवें बन गई, किसी दी शेप कुछ एवें बन गई, एल बन गई, वी बन गई। हर क्रोमोसोम है जिहड़ा वो डिफरेंट तरीके दे नाल दिखना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पीरियड ते दूर जाने शुरू हो गए, ब्रेक होने शुरू हो गए। दैट इज़ कॉल्ड एज द एनाफेज कि क्रोमोसोम्स आपस च अपने अपने क्रोमेटिड्स तो अपने अपने डबल्ड मटीरियल तो टुट जाते हैं, एक पोल वाल नूं जांदा है, दूसरा दूसरे पोल वाल नूं जांदा है, ते उस टाइम ते जिहड़ी उन्हां दी अपीयरेंस हुंदी है दैट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ वी कैन से वी एल जे एंड आई शेप्स दे अंदर हो जाती है। इस दौरान ये हुंदा क्यों है, क्योंकि उस टाइम ते जिहड़े ATPs ने वो पुल दिंदे ने, ते मतलब ATP का नंबर है जिहड़ा वो ज़्यादा है सैल दे कोल, ते वो एक टाइम ते क्रोमोसोम्स नूं पुल देना शुरू कर दिंदे कि उन्हां नूं विचालों दी तोड़ दो, एक पोल ते जाए दूसरी दूसरे पोल ते जाए। दैट इज़ सेड टू बी द एनाफेज। ठीक है, तो एनाफेज दे अंदर की हुंदा है, मोर एंड मोर ATPs ने जिहड़े वो ऐड हुंदे है सैल दे अंदर, ते सैल दे अंदर की हुंदा है एक क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां उन्हां दी एक बैलेट टाइप ऑफ मूवमेंट हो जाती है, दोनों साइड्स तो क्रोमोसोम्स जोर दी दूसरी तरफ जानियां स्टार्ट हो जांदियां ने। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे टीलोफेज दे अंदर की होगा, वट विल बी इन द टीलोफेज। हुण देखो
एनाफेज ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। अर्ली ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਹੀਅਰ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ अर्ली एनाफेज, this is late anaphase, early anaphase and we have is the late anaphase, ठीक है। हुन आ जाओ बेटे नेक्स्ट वाल, that is the telophase। telophase की कहंदा है बेटे, telophase भी बहुत लंबा फेज हुंदा है। telophase दे अंदर सैल दे अंदर साइटोकाइनेसिस कह लो, एक्चुअली दे अंदर telophase दे अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਪਿੰਡਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਲੇਟ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਐਸਟਰ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਆ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्रोमेटिड्स ने, आ रहा, ठीक है, ये दोनों अपने ये सारियां अपने अपने पोल को लाके बैठ गई। आ मेरा लेट एनाफेज कह रहे हैं। टीलोफेज दे अंदर सिचुएशन की आऊगी बेटे, टीलोफेज दे अंदर सिचुएशन विल बी कि जेड़ा स्पिंडल है ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाऊगा, स्पिंडल दी रिजॉल्वेशन होनी शुरू हो जाऊगी, स्पिंडल रिजॉल्व होना शुरू हो गया तो क्रोमोसोम्स क्योंकि दो अपोजिट पोल्स वाल आ गई तो इत्थे दोबारा न्यूक्लियर मैंब्रेन अपीयर होनी शुरू हो जाती है। सेंट्रीओल्स ने जेड़े वो दोबारा अपनी पोजीशन लैन लई तैयार ने, ठीक है, क्योंकि हुण उन्हां च हजे भी एस्टर रेज प्रेजेंट ने बट वो अपनी एस्टर रेज ने जड़ियां उन्होंने हुण दो अलग अलग सैल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। नाल ही साइटोप्लाज्म के अंदर भी कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। आप साइटोकाइनेसिस डिस्कस करांगे बेटे बट ये नाल दसूंगी ताही अपने कोल सैल है जिहड़ा वो पूरे दो भागां च वंडिया जाऊगा। हुण न्यूक्लीयर मैंब्रेन जिहड़ी है वो दोबारा बननी शुरू हो गई, स्पिंडल फाइबर्स अपने आप नूं खत्म कर रही ने, ठीक है, पहला ये ज़्यादा ने, हुण देखो फिर की हुंदा है हौली हौली खत्म होनियां शुरू हो जांदियां ने, ठीक है, खत्म घट गई फिर होर घट जाणगियां। मीन वाइल आ चीज़ होर अंदर अंदर आनी शुरू हो जाती है तो एक सैल है जिहड़ा वो इत्थे दोबारा इहदा न्यूक्लीयर मैंब्रेन बन जाता है तो एक सैल आदे सेंट्रीओल फिर उपर आ गए, न्यूक्लीयर मैंब्रेन बन गया तो क्रोमोसोम्स वापस क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स का ही नंबर इधर आ जाता है, 46 क्रोमोसोम्स का ही नंबर इधर आ जाता है। सैल किन्ने बन गए, एक तो दो सैल्स बन गए, ठीक है। वी हैव इज द 2 नंबर ऑफ द सैल्स फ्रॉम द 1 नंबर ऑफ द सैल, ठीक है। दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, सेम है, सेम अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो अपने को एक सैल तो किन्ने डॉटर सैल्स बन गए, 2 डॉटर सैल्स ने जिहड़े वो बन गए। तो टीलोफेज भी एक लॉन्ग तो कॉम्पलैक्स फेज है बेटे जो कि अबाउट एन आर मतलब वही 50 मिनट्स तक जिहड़ा है वो चलता रहिंदा है सैल के अंदर। ਇਹਦੇ अंदर जिहड़ा एनवेल्प है वो स्लोली न्यूक्लीयर एनवेल्प स्लोली रीअपीयर होना शुरू हो जाता है तो क्रोमोसोम्स ने वो ग्रैजुअली अपने आप को दोबारा कोआइल करना स्टार्ट कर देंगे ने। न्यूक्लियोलर जिहड़ा न्यूक्लियोलस है वो दोबारा बनना शुरू हो जाता है तो स्पिंडल फाइबर्स ने तो एस्टर रेज ने जिहड़ियां वो दोबारा अलग अलग होनियां शुरू हो जांदियां ने। फाइनली जिहड़ा साइटोप्लाज्म है उहदा अमाउंट आप कह सकते हैं कि सैल अपना दोबारा नॉर्मल शेप लै लेंदे ते साइटोप्लाज्म दोबारा जिहड़ी उहदी विस्कोसिटी है क्योंकि इत्थे साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया सी, प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स भर गए सी उहदे अंदर, तो उहदी जिहड़ी विस्कोसिटी है गाढ़ापन है वो दोबारा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी है जिहड़ी वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी बेटे। तो हुण अपने कोल की आ गया, ये मेरे कोल हो गया कि एक सैल 2 दे अंदर किवें डिवाइड हो गया, ठीक है। हुण अगर आप अज तुहाडा होमवर्क की है बेटे, तुसी सारिਆਂ ने ये डायग्राम्स ने जिहड़ियां वो ट्राई करनियां ने, ठीक है। तो सब ने डायग्राम्स ट्राई करनियां ने। माइटोसिस का एक पार्ट जिन्हों आपने कहा कैरियोकाइनेसिस वो कंप्लीट हो गया बेटे। हुण आपां साइटोकाइनेसिस डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन द नैक्सट क्लास, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।